हम सब सुनते तो हैं जल ही जीवन है, बट हम कचरा डाल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद मेरे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं या बाकी लोगों को जो होगा वही मेरे साथ हो जाएगा, देखा जाएगा। आई एम सॉरी टू से कि अनफॉर्चुनेटली अर्बन एरियाज में दे आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स रिवर यमुना। आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस क्वालिटी की यमुना आपके एंटर करती है, एटलीस्ट उसी क्वालिटी की यमुना आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर जानी चाहिए। हमने स्टडी में ये भी पाया कि यमुना का 80% पोल्यूशन जो है दिल्ली से आती है। आज की जनरेशन वो सोचती है कि मेरा रूम, मेरा मोबाइल, मेरा इलेक्ट्रिक गैजेट, दैट्स इट। तो मेरा जो सुझाव है यंग जनरेशन को ये बोलूँगा कि We grew up hearing that jal hi jeevan hai, but for millions of us, the Yamuna isn't just a chemical formula of H2O. She is Ma. Yet we stood by as our Ma turned into drain of toxins. We often blame the government, the climate, but we overlook our own role in this crisis. The person balancing all these heavy scales, the bridge between our societal needs and the nature's limit, is often most sideline voice in the room, the engineer. Today's guest didn't just study the textbook, he studied the pulse of our rivers. From the prestigious halls of IIT Roorkee to the dusty banks of the bridge, Professor Emil Kansal has spent a lifetime trying to prove that engineers' greatest tool isn't just calculator, it's their conscience. Welcome back to Neve, where we unmask the hidden stories behind massive infrastructure and the people who build our world. We have absolute privilege of hosting the incredibly distinguished Professor Emil Kansal, the man who is trying to fix the cost of our ignorance. He is senior professor and the former head of department at IIT Roorkee. He also served in highly esteemed roles as NIPCO and JPSS chairperson. But beyond these impressive academic titles, he is mentor whose work beautifully bridges the gap between complex engineering and the real human lives. So it is an absolute honor to have you here. Welcome to the show. thank you. I'm honored to be with you this morning. Yes. To begin with, I want to know from the very start that how this raw interest in construction evolved over the years, and how it is you made it to connect to the society as well. Actually, in the society, if we see from our childhood, we have been seeing the natural and built environment around us. And the moment we are looking towards the built environment in the society, that creates the basic information about how our infrastructures have been developed, how it has been responding to the nature. So that is what from where we are starting. The moment we are brought up, we see our houses, we see our roads, we see our hospitals, we see our schools, and then we look analytically or critically these infrastructure, how these are helping us to grow. So I think from there I came to know that yes, civil engineering or engineering, they build the nation and the society at large. Yeah, that is correct. So, sir, how did this interest, like, what was your point where you started with, taking interest? What was, you were telling me about the story from your childhood. Yes, fortunately, my background and my father's involvement was a little bit with the construction activities, and he was the owner of the brick kilns. And in the process of that, I got the opportunity to visit the manufacturing of the bricks and then the construction of the houses. So in that, I was involved very closely. I have seen that how the bricks are made, raw bricks are made, how the raw material is prepared, and how they are burnt, and how they become the class 1 bricks or class 2 bricks, and then how they help us in the construction activities. I think from my, I would say, from the childhood, I have been looking for the construction, and that's how I got the interest in civil engineering. Right. That is great. You know, from the very beginning, you were really clear about the fact that you want to go into this.
and it got like you got the interest. So I want to jump into, because you are literally like saving Yamuna, and हम सब सुनते तो हैं जल ही जीवन है, but working on it and taking actions is a really different thing. So sir, can you explain me कि working on it or actions, what is it exactly, like what you as person, like as professor helping the society to build it again with the river Yamuna as well? Actually, if you see that 3 points are very important: Jal, Jameen, and Jungle. If you connect these three, that becomes connected with the society. So that's why in the last several years, I have been advocating and working in the area of water and society. That how water can change our society. That is what my focus is. And when we consider the driving force of water, we have to think of the society, we have to think of the built environment, we have to think of the technology, and we have to think about the policies and governance of the water. और जब आपने यमुना की बात किया, हाँ तो जी. basic source of water are our rivers, right? And Yes. rivers could we get a little bit pain. On one hand, we are saying that the rivers are our mata, or they are the living god, right? Most of the rivers in India, if you go through, all names are after the goddesses. एक तरफ हम जो हमारी देवियों को पूजते हैं, और दूसरी तरफ हम उनको नदियों को हम पोल्यूट भी करते हैं। तो ये विरोधाभास जो हम देखते हैं कि वे एक तरफ पूजा की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाने की बात करते हैं। तो इस विरोधाभास में कहीं न कहीं पे हमको पेन होता है। Right. उस पेन को थोड़ा कम करने के लिए हमने सोचा है कि भी हम क्यों ना हम ये बीड़ा उठाएँ कि हमारी नदियाँ जो हैं, जो हमको जीवन देती हैं, जैसे आपने सही कहा कि जल ही जीवन है, और ये हमारा जीवनदायिनी भी बोलते हैं हम रिवर्स को। तो जो जीवनदायिनी है, तो उसको हम कैसे गंदगी से भर सकते हैं? Right. तो उस उद्देश्य को देखते हुए तब हमने एक 3 साल पहले एक ये बीड़ा उठाया हमने यमुना जी के लिए। और दूसरा है कि भी दूसरा एंगल हमारा सोसाइटी का ये था कि जो हमारे यहाँ पे दुनिया में करोड़ों-करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, और यमुना जी कृष्ण की बहुत प्रिय हैं। और Yes. इतने करोड़ों लोग कृष्ण भक्त होते हुए भी, और यमुना की दुर्दशा अगर हम देखें, तो पर्टिकुलरली जैसे दिल्ली में अगर देखें, या उसके दिल्ली के नीचे अगर हम देखें, इवन हरियाणा की रीच में भी देखें, तो हाईली पोल्यूटेड है। जो यमुना कल-कल करती बहती थी, जो उत्तर प्रदेश ये उत्तराखंड से जो बह के चलती थी, और हाँ. प्लेन्स में आते-आते इतनी गंदी हो जाती है, और प्रयागराज में आके जो यमुना, और दूसरी एक और बात बताता हूँ कि जो यमुना जी है, गंगा की बड़ी बहन है। बड़ी बहन मानते हुए भी, और बड़ी बहन इतना पोल्यूटेड है, फिर गंगा में समाती हैं, और उसके बाद भी फिर हम इतना पोल्यूशंस को देखते हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम जो आस्था के साथ-साथ हमारी जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ-साथ हम इसको टेक्निकल पॉइंट व्यू से भी देखें, और इसको हम कैसे रिवर को रीजेनरेट कर सकते हैं, और उसको अपने पुराने रूप में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सोचा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, और जो मानवता है वो ग्रीडी इतनी हो गई है कि जो रिवर को पोल्यूट कर रही है हम अपने छोटे इंटरेस्ट के लिए, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Right. तो सर लाइक दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव पहले तो, एंड जैसे आपने बताया कि रीजेनरेट कर रहे हैं आप रिवर्स को एंड यमुना को स्पेशली, इट इज़ अ वेरी यमुना तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन जनता के लिए होल्ड करती है। तो सर एग्जैक्टली पहले तो मुझे जानना है कि व्हाट वाज द लाइक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है, अगर रिवर कंटामिनेटेड किससे ज़्यादा हो रही है सबसे ज़्यादा, एंड देन फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट आई वांट टू नो सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन क्यों कॉज़ हो रहा है, कैसे कॉज़ हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन का जो रीज़न है, एंथ्रोपोनिक एक्टिविटीज़ है। ओके. क्योंकि यमुना एक तरफ जो है कि सिविलाइजेशन ज़्यादातर डेवलप हुई हैं, वो वाटर बॉडीज़ के किनारे पे हुई हैं। राइट. जब तक सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट कम है और नेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा है, जब तक रिवर
ओवरशैडो करती है एंथ्रोपोनिक एक्टिविटीज को, तब तक तो हम्म, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ती है रिवर के किनारे पे, तब पॉपुलेशन का इफेक्ट रिवर्स पे आने लग जाता है। तो राइट। उससे जो रिवर पोल्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है। रिवर की राइट। कुछ तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है। जब पोल्यूशन सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तब रिवर पोल्यूट होने लग जाती है। राइट। ओके। तो एंड मेजर लाइक ओके, तो आप एग्जैक्टली किस रीजन में आपने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव ये, एंड यू आर द पर्सन जो टेक्निकल एस्पेक्ट यू बॉट इनटू द पिक्चर ऑफ दिस रिवर, लाइक द वाटर क्लेंजिंग। तो टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ से आपने स्टार्ट किया एग्जैक्टली, मतलब द देखिए, रीजन पहले हमने तो। हमने इसमें अ, 4 चीजें हमने फोकस करने की कोशिश किया है यमुना के लिए। एक तो स्वच्छ यमुना की बात किया है हमने कि यमुना को क्लीन कैसे रखें हम। हम्म। दूसरा, हमने हरित यमुना की बात किया है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ग्रीन कैसे रखें उसको। हम्म। तीसरा, हमने सेफ यमुना की बात किया है कि भी सेफ्टी यमुना की हम कैसे कर सकते हैं, स्पिरिचुअली उसको कैसे बात कर सकते हैं। और फोर्थ है कि हमने हरी यमुना पथ हम कैसे बना सकते हैं कि लोगों को नदी के क्लोज कैसे ला सकते हैं। ओके। तो ये 4 एंगल्स पे हमने फोकस करना स्टार्ट किया। पहली तो बात है कि हमने पूरी रिवर को जाना। हमने दोनों बैंक्स पे रिवर के 1500 किलोमीटर की रीच है, जो यमुनोत्री से लेके और प्रयागराज तक की है। तो 1500 ऑन लेफ्ट बैंक, 1500 ऑन द राइट बैंक, 3000 किलोमीटर की लेंथ है यमुना की। उसको हमने ट्रैवल किया, पूरा ट्रैवल करके गांव गांव गए और जो डिफरेंट पॉइंट्स है जहाँ पे ड्रेन्स मिलते थे रिवर को, वहां पे देखा। और कैसे यमुना का पानी का रंग बदलता है, कैसे यमुना की पानी की क्वांटिटी चेंज होती है, वो सारा हमने ऑब्जर्व किया। और ओके। लोगों के विचार भी जानने की कोशिश किया। बाय एंड लार्ज हमने ये पाया कि जो रूरल एरिया है यमुना के साथ साथ, वो लोग काफी सेंसिटिव हैं। वो यमुना के लिए काफी काम करने चाहते हैं। उनको दे आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स रिवर यमुना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि दिल्ली में अगर आपने कभी देखा हो कि जो ओखला बैराज है, उस पे से एवरी डे आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल थ्रू दैट ब्रिज। जो डिसीजन मेकर्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, इलाइट ग्रुप है, दे आर नॉट बोदर्ड अबाउट द रिवर कि उसमें जो फोगिंग हो रही, जो फोमिंग हो रही थी, जो स्मेल आ रही है, दे आर नॉट बोदर्ड। दे आर कंसिडरिंग दैट एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ। विशे राइट। बीच अगर हम देखें उत्तराखंड में, जो गांवों में जो लेडीज हैं, जो नदी से पानी लेके आती हैं, पीने के लिए लेके आती हैं, बाकी अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लेके आते हैं, वो यमुना जी के गीत गाती हुई चलती हैं। और उसके जो पानी का पूरा जो ट्रैवल कंटेनर्स जो हैं, वो गीत गाते हुए लेके जाते हैं। और उनको पता है कि ये इस जगह से हम पानी लेते हैं अपने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए। वो ऐसी कोई गंदगी नहीं फैलाते उस रीच के अंदर जहाँ से उनको पानी को लेना है। और वो कोई भी जो त्योहार है उस पे पूजा करते हैं नदी की। वो सब उसमें जो स्पिरिचुअलिटी भी है लोगों की, वो वहाँ पे आपको गाँव में मिल जाएगी। तो हमने राइट। हमने ये देखा कि भी एक तो जो गाँव में लोगों की श्रद्धा है, उसको हम कैसे यूज़ करें और उसको स्प्रेड कैसे करें। फिर हमने सोचा कि जो सेफ यमुना करने के लिए भी स्पिरिचुअली हमने ये भी देखा कि लोगों को आप कुछ भी बताएँगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगी बात। फिर हमने एक ये देखा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, उनको अगर बताएँ तो वो अपने पेरेंट्स को बताएँगे तो शायद लोग गंदगी फैलाना कम करेंगे। फिर वो भी कुछ एक्सटेंट तक वो सही है, वो सक्सेसफुल भी रहा। फिर हमने देखा कि भी जो अगर भागवत कथा अगर सुनाएँ, और भागवत में यमुना जी का काफ़ी महत्ता है, तो लोगों को भागवत कथा सुनाएँ तो उससे लोगों में शायद थोड़ा-सा विश्वास जगेगा और वो शायद गंदगी नहीं फैलाएँगे। तो इसके लिए हमने 108 भागवत कथाओं का आयोजन किया, जो पूरा 2 साल चला। कंटिन्यूअस भागवत कथाएँ सुनाई, एक जगह से दूसरी जगह पे 8वें दिन चेंज करके। और हमने 54 प्लेसेस ऑन राइट बैंक, 54 प्लेसेस ऑन लेफ्ट बैंक, ये आइडेंटिफाई करके वहाँ पे conglomeration of the people we had, and we educated the people through the spirituality, and we also educated
कि भाई यमुना की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और हमको स्वच्छ कैसे रखना चाहिए। और फिर करेक्ट। उसके साथ साथ हमने परमानेंट एक उसको इशू बनाने के लिए हमने वहां पे पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना किया सब जगह पे, सो दैट कि लोग हनुमान जी की पूजा भी करें। और जो आज कलयुग में हनुमान जी को हम लिविंग गॉड मानते हैं और हम्म। उसको जब उनको पूजते हैं तो वो शायद वो यमुना जी की रक्षा भी करेंगे। और साथ में लोग भी जो गंदगी फैलाने से पहले सोचे, क्योंकि मंदिर में या भगवान हनुमान जी की पूजा करने के टाइम पे वहां पे शायद गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो उस वाह। एंगल से हमने बात किया। फिर तीसरा हमने यमुना जी के किनारे पेड़ लगाने की बात किया। और ओके। एक छोटी सी स्टोरी, जब उस टाइम पे बचपन में हम पढ़ते, माँ यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो कदम के पेड़ की उसकी इम्पोर्टेंस कहते हैं कि कदम के पेड़ में भगवान का वास होता है। और उसी टाइप से हमने फिर ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे यहाँ पे मौसम के हिसाब से कौन कौन से पेड़ हम यमुना के किनारे लगा सकते हैं। तो हमने करीब 24 या 26 टाइप ऑफ ट्रीज आइडेंटिफाई किए जो यहाँ पे ग्रो इजीली कर सकते हैं। वो उस टाइप की कल्चर थ्री on थ्रू द लेंथ, वो जो या प्रयागराज से या लेंथ ऑन है। बोथ बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो हाँ। जहां जहां पे हमने कथा किया वहां पे हमने गांव की जमीन के लिए रिक्वेस्ट किया, जहां पे गोचरण की लैंड होती है जो गांव की सरपंच के पास होती है। तो हम्म। उनसे रिक्वेस्ट करके हमने यमुना के किनारे किनारे पेड़ लगाने की कोशिश किया। करीब 3 लाख पेड़ हमने लगाए हैं 5-6 जगह पे। जैसे कि हम्म। यमुनानगर के पास लगाए हमने, जलमाना में लगाया, जठलाना में लगाया पानीपत के पास में, फिर हमने फरीदाबाद में लगाया, फिर हमने हमीरपुर में लगाए। तो इस टाइप से अलग अलग जगह पे हमने डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश किया। और उसकी ओके। उसकी इंफॉर्मेशन हमने एक जापानी टेक्निक टेक्निक है मियामाकी फॉरेस्ट की, उसको हमने एक एनालोगस इंडियन टेक्निक बनाने की कोशिश किया। और उसके अंदर जो लोकली सरवाइव कर सकते हैं पेड़, उनके लिए हमने एक डेंस फॉरेस्ट बनाने की कोशिश किया। राइट। And it is giving us satisfaction that such a forest has been developed at these few places and it is working very well. Okay. राइट। दैट and इज। and and then the fourth one, that is the हरि यमुना पथ। जैसे नर्मदा की परिक्रमा लोग करते हैं, हमारी इच्छा है कि ये 3000 किलोमीटर का अगर यमुना के किनारे किनारे पथ बन जाता है, लोग कृष्ण भक्त जो यमुना के किनारे किनारे चलते हैं, तो वो एक लोगों को नदी के किनारे लेके आने का एक बहुत बड़ा हमारा प्रयोजन सफल हो सकता है। सरकार इसमें काफी कुछ कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा एक्सप्रेस वे, और जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं कि यमुनानगर से लेके और दिल्ली तक की रीच है, दिल्ली हाँ। से फिर प्रयागराज की रीच है। हम्म। अब जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो कम से कम मोटरेबल रोड से या मोटर से जा सकते हैं। और अलग हम्म। अलग जगह पे वो लोग स्टे कर सकते हैं। फिर मान लो आपने 200 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चले, फिर आपने आराम किया, फिर आपने आगे चले। तो करीब ऐसा है कि 200 किलोमीटर पर डे भी अगर चलते हैं तो हम एक वीक के अंदर हम पूरे 1500 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो 2 वीक के अंदर आप पूरी यमुना जी की परिक्रमा कर सकते हैं बाई, अगर रोड जाते हैं तो। और पैदल कोई जाता है तो भी 1 महीना 2 महीने के अंदर भी कोई अगर श्रद्धालु जाना चाहें तो उस टाइप से कर सकते हैं। तो वाह। ये 4 एंगल से हमने इसको सोच के चले थे कि भी इसमें कुछ हम कर सकते हैं। फर्स्टली तो आई लव द पार्ट वेयर हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या फिर हम कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं, वी टेक द मल्टीपल एंगल्स और क्रिएटिविटी मिक्स करके वी हैव टू डिलीवर इट इनोवेटिवली टू द पीपल। पहली बार सर, और सबसे ज्यादा यमुना दिल्ली में बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा है, राइट? यस, जो जो अर्बन एरिया में आप देखें कि दिल्ली में मैक्सिमम ये 21 किलोमीटर की रीच है। जो आप ये कहिए कि जो जहाँ से पानी ये ड्रा करते हैं कि उस जगह का नाम एक जो जहाँ से नजफगढ़ रेंज ज्वाइन करती है, वहां से लेके और जो ओखला बैराज तक करीब 21 किलोमीटर की रीच है दिल्ली की, जिसके अंदर की 20 ड्रेन्स, मेजर ड्रेन्स ज्वाइन करती हैं, जो पूरे आसपास के एरिया का पोल्यूशन लेके आती हैं। और वहां पे जो क्लीनलीनेस के नाम पे बिल्कुल ब्लैक वाटर है बेसिकली यमुना के अंदर। तो उसके लिए मेरा एक ये भी मानना था, सुझाव था कि अगर जो ड्रेन्स है 20 ड्रेन्स हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस है या गवर्नमेंट है, उसको एक एक ड्रेन को भी अगर अपने साथ ले ले और उसको क्लीन कर ले, तो बड़े आराम से दिल्ली का पोल्यूशन साफ हो सकता है।
राइट। हमने स्टडी में ये भी पाया कि यमुना का 80% पोल्यूशन जो है वो हम्म। दिल्ली से आता है। हम्म। तो अच्छा। ये 20 ड्रेन्स को अगर हम क्लीन कर लेते हैं तो हम एक मेजर पार्ट ऑफ द यमुना को है उसको क्लीन कर सकते हैं। वाह। दूसरा दूसरा एक मैंने फिलोसफिकल एक मैं एडवोकेट करता हूँ हर बार कि यमुना के किनारे करीब 37 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हम्म। तो 37 डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल है उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं। अगर हम एक डिप्टी कमिश्नर के पास एक डिस्ट्रिक्ट का रोल रहता है, सिंपल फिलोसफी में बोलता हूँ कि हम अगर डिप्टी कमिश्नर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसी यमुना, जिस क्वालिटी की यमुना आपके एंटर करती है, एटलीस्ट उसी क्वालिटी की यमुना आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर जानी चाहिए। ओके। राइट। वो तो बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम्म। 37 डिस्ट्रिक्ट है। 37 डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये देखें तो आपका 80 किलोमीटर की रीच बैठेगी। राइट। 80 किलोमीटर एक डिप्टी कमिश्नर बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। राइट। तो उसके अंदर अगर ये भी मेंटेन कर लें तो पॉलिसी वाइज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज इट कैन बी वेरी इजीली डन। राइट। और 37 डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने यहाँ पे दिल्ली में बुला सकती है। और आपके मेरे ख्याल से 6 या 7 स्टेट्स आते हैं कि आपका हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को 37 डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स को बुला के अगर ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं कि भी आपके एरिया के अंदर जैसी रिवर आ रही है वैसी ही क्वालिटी की रिवर आपसे बाहर जानी चाहिए। राइट। सो देन इट कैन बी वेरी इजीली मैनेज्ड। जो Yes. आज की डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर जो इशू बना हुआ है, उस इशू को बड़े आराम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल्व कर सकती है अगर इस पॉइंट्स पे वो ध्यान दे दे। करेक्ट। राइट। सो लाइक मेजर आपने बताया 80% ऑफ द पोल्यूशन कम्स फ्रॉम दिल्ली। अब फिर भी दिल्ली की ही लाइक दिल्ली में ही सबसे ज्यादा लोग इग्नोरेंट हैं, जनरल भी लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं अबाउट दीज वाटर बॉडीज। एंड हम कचरा डाल रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? मेजर कॉन्सिक्वेंसेज। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज भी पता है हमको। ऐसा नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेज पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद मेरे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं या बाकी लोगों को जो होगा वही मेरे साथ हो जाएगा, देखा जाएगा। वो देखा जाएगा जो एटीट्यूड है वो गड़बड़ है। यस सर, करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट पे क्या है कि हमारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेटर हुई है फॉर्चुनेटली, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यूअर पोल्यूटेंट्स हैं लाइक द फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, ये जो पानी के साथ मिक्स होके और हमारे पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आ रहे हैं वो हमको शॉर्ट रेंज में नहीं लॉन्ग रेंज में हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसलिए आप देखिए ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स आपको यमुना के किनारे किनारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ओह। इवन हमने एक देखा एक विलेज के अंदर जो फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में आता है या फरीदाबाद के नीचे आता है, वहां पे उस गांव में काफी कैंसर के पेशेंट है। मे बी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे गांव में जाते हैं और वहाँ पे लोग जो कुएं बनाए हैं या जो उन्होंने ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं जो यमुना से रिचार्ज होता है, तो वो पानी पीते हैं तो उससे उनके लॉन्ग टर्म पे हेल्थ पे असर आता है। आप ये इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा अगर जो पूरी लाइफ अगर वो पोल्यूटेड वाटर पीता है तो ऑब्वियसली उसको रिस्क ऑफ द कंटेमिनेशन इज वेरी हाई। राइट। करेक्ट सर। एंड उधर ही जो आपने बताया कि गांव वगैरह में बहुत ज्यादा वैल्यू है। एंड द पार्ट, ओके सर, आई वांट टू नो फर्स्टली, जब इतने ज्यादा एंगल से अप्रोच किया गया प्रॉब्लम को, स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड की गई, टीचिंग, स्प्रेडिंग, प्रीचिंग इंक्लूड की गई, वन, आई वांट टू नो कि कोई ऐसा स्टोरी या कुछ ऐसा चीज जो एकदम डिस्टिंग, मतलब ऐसे यू नो यू वर ऑल्सो अनअवेयर सम फैक्ट कि आपको एकदम से दिखा, ओ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना चाहिए, सम स्टोरी लाइक तो दैट। उसमें देखिए कुछ कुछ हमको जो अच्छी चीज जो दिखाई दी, पहले टू बी वेरी फ्रैंक हम भी इतने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे और हम सोचते थे कि भी ये कोई वो साइंटिफिक नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक हमने ये ऑब्जर्व किया, जो हमने पहले पढ़ा भी था कभी, कि जो भक्ति और श्रद्धा ये पहाड़ों में ज्यादा है।
और जो प्लेन्स में आते आते भक्ति हमारी मलिन हो जाती है, कर्म हमारे मलिन हो जाते हैं। तो जब भक्ति और कर्म हमारे मलिन हो जाते हैं प्लेन्स में, तो हमारा ज्ञान भी मलिन हो जाता है। ठीक है। Correct. और ये जो हम जब ऊपर देखते हैं, हमने उत्तराखंड में खुद ऑब्जर्व किया कि वहां पे हर गांव का एक देवता होता है, ग्राम देवता बोलते हैं। वो Right. ग्राम देवता जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो स्पिरिचुअली उसको जो अंदर से फीलिंग आती है कि क्या करना है, जो वो इंस्ट्रक्शन देता है, तो पूरा गांव उसकी बात, उनकी गांव बात को मानता है। Right. तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि यमुना के लिए अगर ग्राम देवता ने कुछ बोल दिया, तो वो गांव के लोग उसको मानेंगे। Yes. लेकिन हमारे यहाँ पे जो नीचे जो प्लेन्स में आज जब आते हैं, हमारे यहाँ पे किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति कोई ओबीडियंस ही नहीं है कि भी कोई कह देगा तो हम काम कर लेंगे। हम कहते हैं कि भी ये मेरे को करने की जरूरत नहीं है, बाकी सरकार देख ले। एवरीथिंग दे वांट दैट कि सरकार की ड्यूटी है। जबकि सरकार क्या है? सरकार भी तो हम ही लोग सरकार हैं। जब हम अगर काम नहीं करते तो हम सरकार से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो Right. हमारा एक ये भी एजेंडा शुरू से रहा कि हम इसमें सरकार से कोई सहयोग नहीं लेंगे। हम सहयोग करेंगे तो अपने लेवल पे यथासंभव जो भी हो सकता है। हमने ये मान के चले कि तन, मन और धन, तीनों से जितना यथासंभव हम खुद काम कर सकते हैं करें, हम किसी से एक्सपेक्ट ना करें। Right. कोई Correct. कंट्रीब्यूट करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो आप अपने से जितना कर सकते हैं उतना करें। और ये Right. भी एक बात देखा कि मनी इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि जितना तन और मन से। तन और मन अगर जिस बंदे का, जब तक क्यों लोग, बहुत लोग मिल जाएंगे भी मेरे से पैसा ले लो और तुम कर दो, कि मेरे Correct. पास टाइम नहीं है। Correct. नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम Hmm. और अपने शरीर से जो आप कुछ कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे कि जब आप अपने हाथ से कुछ काम करते हैं, हमने एक इसमें जलमाना में पेड़ वृक्षारोपण का काम किया। वहां पे छोटे बच्चे, लेडीज और सब लोग वहां पे आए, उन्होंने काम किया। इवन जो मेरे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तंजानिया के अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं, दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो Oh. दे लाइक एनीथिंग कि इट कैन बिकम ए मास मूवमेंट एंड इट शुड बी मास मूवमेंट। जब Yes. तक ये मास मूवमेंट नहीं बनेगा, तब तक हम नेचर को बेटर नहीं कर सकते। और नेचर को बेटर हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही तो कर रहे हैं। हम Yes. अपने लिए अगर करने के लिए, अगर हम उसके लिए मास मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं। Yes. अनफॉर्चुनेटली हम जो सेल्फिश बहुत ज्यादा हो गए हैं, हम सोचते हैं कि कोई दूसरा ही कर दे, हमको कुछ ना करना पड़े। Correct, sir. That is the actually motive also कि इतना massive जब infrastructure है, हम pollute कर रहे हैं and people in general ignorant है in for the infrastructure, for the nature, for everything, and that is all actually the motive of NEEP to show कि पहले कितनी ज़्यादा analysis, कितना ज़्यादा working psychological analysis research लगती है, then we like then ही nation कुछ build करता है. Even the expressways, just you told us कि वो भी एक from many angles it was designed. So that is the motive. And coming on to your water for change, sir, you did a SWOT analysis, right? For the Yes. for the water sensitivity. So it was in Netherlands, with the Netherlands. यस, एक्चुअली So एक हमने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग किया था लास्ट 6 years बैक। और हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था विद ए कॉल फ्रॉम इंडो नीदरलैंड प्रोजेक्ट। और hmm, उसको दैट वी हैव ए कंसोर्टियम ऑफ अबाउट 11 इंस्टीट्यूशंस, 5 फ्रॉम नीदरलैंड, 6 फ्रॉम इंडिया। और उसके अंदर हाउ वाटर कैन चेंज आवर सिस्टम। पर्टिकुलरली हमने एक प्रपोजल जो दिया था सेकेंडरी सिटीज के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए तो बहुत सारी प्लानिंग गवर्नमेंट कर देती है और पैसा भी लगा देती है। लेकिन हमारे सेकेंडरी सिटीज जो हैं, सेकेंडरी सिटीज के लिए कोई प्लानिंग नहीं है और कोई उसके लिए बजट एलोकेशन नहीं होता। तो वो वेदर दे आर वाटर सेंसिटिव और नॉट, वो कैसे पता चले, और उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ये पता चले। बिकॉज इट वेरीज ए लॉट। फॉर एग्जाम्पल से इंडिया में जो अगर आप देखें कि लेट्स से कि 1 लाख से लेके और 10 लाख तक की पॉपुलेशन के जो सिटीज हैं, hmm, उनमें टोटली अनप्लान्ड वाटर सिस्टम्स हैं। अच्छा, उसमें उसके लिए करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसकी पहले, सबसे पहले तो ये है कि उन सिटीज को असेस करना वेदर दे आर वाटर सेंसिटिव और नॉट। उनकी right, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो इसलिए right, हमने स्वोट एनालिसिस पे जोर दिया। दूसरा है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पूरा कंटिनेंट की टाइप से है।
कि जो प्रॉब्लम्स पहाड़ों में है सिटीज के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट के जो सिटीज है उनकी डिफरेंट है, वेस्टर्न इंडिया के सिटीज की प्रॉब्लम डिफरेंट है, प्लेन्स की करेक्ट, अलग है। तो हम करेक्ट, एक ही सिस्टम से उनको नहीं हाँक सकते। तो हमने करेक्ट, तीन सिटीज को उसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया था, कि एक भुज को लिया, एक हमने भोपाल को लिया और एक कोझीकोड को लिया। कि एक कोस्टल एरिया के अंदर था, एक एरिड जोन के अंदर था, एक सेमी एरिड जोन के अंदर था। जो एक में वाटर सरप्लस था, एक में वाटर डेफिसिट था, एक में कोस्टल एरिया था। तो उससे हमने लोगों से इंटरेक्ट किया, उनकी नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी को उनसे बात किया। फिर हमने बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट करके फिर हमने 4 मेजर फैक्टर्स के अंदर करीब 100 पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए फिर वाटर सेंसिटिविटी को असेस करने की बात किया। फिर उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एडवांस करके फिर हमने पोंटा साहिब के लिए जैसे एक केस स्टडी लिया, कि जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सिटी है पोंटा साहिब, जो स्पिरिचुअली भी वेल नोन है। सिखों के धर्म गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या की स्थली है। हिंदुओं का भी काफी अच्छा है, मुस्लिम्स भी वहाँ पे बहुत सारे हैं। और ये जो सिटी है वो 4 स्टेट्स के बॉर्डर पे है, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी एंड हरियाणा। तो ओके, वो बॉर्डर सिटी है और यमुना के किनारे है। और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब भी है, जो इंडस्ट्रियल हब यहाँ का हिमाचल प्रदेश का भी है और इंडस्ट्रियल हब उत्तराखंड का भी है। तो वो पोल्यूशन जो हाइड्रो पावर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और जो वाटर फॉर हरियाणा एंड यूपी, दिल्ली, राजस्थान सबके लिए फेमस, क्योंकि हथनीकुंड बैराज भी वहीं पे है, उसके जस्ट 20 किलोमीटर डाउन पे है। अच्छा, तो हथनीकुंड बैराज से पूरा पानी हरियाणा का जो वेस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू आता है और ईस्टर्न यमुना कैनाल से यूपी को जाता है, और रिमेनिंग वाटर जो इसको दिल्ली को जाता है। तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो उसके लिए हमने स्टडी किया, उसकी वाटर सेंसिटिविटी असेस किया, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, एंड वी हैव पब्लिश द पेपर आल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल, एंड वी होप दैट समथिंग गुड विल प्रिवेल, एंड द पॉलिसी मेकर्स विल टेक द डिसीजन। और उसमें हमने पोंटा साहिब में, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी एक हमारा आस्था का केंद्र है, उसी टाइप से हमने कोशिश कर रहे हैं कि पोंटा साहिब में भी यमुना के किनारे एक आस्था का केंद्र बने, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो कि माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने 65 करोड़ के करीब उन्होंने 2 साल पहले सैंक्शन किया था, और फर्स्ट फेज उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। वो वर्क इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। आई होप विद इन 1 ईयर दैट विल बी कंप्लीटेड। सो आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि हरिद्वार के साथ साथ यमुना में भी आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जहाँ पे कि लोग श्रद्धा के लिए वहाँ पे जाएंगे। दैट इज ग्रेट सर, मतलब रिलेटिंग ऑल दीज थिंग्स एस्पेक्ट्स एंड अगेन रिवाइव कर रहे हैं हमारे पुराने नॉट द मेट्रो सिटीज, तो दैट इज वेरी ग्रेट। एंड सर यू डेवलप्ड a real coded genetic algorithm to optimize water network, right? And worked extremely towards the reliability analysis of water distribution system. एक्चुअली आप ये देखेंगे, जो जैसे अर्बन एरिया के अंदर जाएंगे, हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, में ऑलमोस्ट लेट 80s में दिल्ली में था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहाँ पे एक जापानी फर्म को हायर किया था गवर्नमेंट ने, कि भी एटलीस्ट जो वाल्व एरिया है सिटी का, चांदनी चौक, दरियागंज का है, वहाँ पे ये पता ही नहीं कि पानी की पाइपलाइनें हमारी कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं की है। तो उसको मैपिंग करने के लिए भी इट वाज ए ग्रेट जॉब, एंड दैट कंपनी कुडंट डू दैट मैपिंग ऑफ द वाटर पाइपलाइंस। और नए सिस्टम को डेवलप करना वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं करीब 30 सालों से इस बात पे काम कर रहा हूँ कि हमको रिलायबिलिटी बेस्ड ऑप्टिमल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बात क्या होती है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जैसे जैसे प्लानिंग होती है, उसमें आगे आगे हम पाइपलाइंस को बढ़ाते चले जाते हैं। उससे हमारी रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ द रीचेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द वाटर क्वालिटी रिलायबिलिटी, ये हमारी चेंज होती चली जाती है, और हमको पता भी नहीं चलता कि भी हमारी रिलायबिलिटी कम हो गई और जबकि हमारे नेटवर्क की कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
तो उसको रिलायबिलिटी बेस्ड और रिस्क बेस्ड ऑप्टिमल डिजाइन ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क, दैट बिकम्स ए ग्रेट वर्क। और So, उसी के अंदर फिर जो हमने जेनेटिकली बेस्ड एल्गोरिथम पे जो जब एक एक पाइपलाइन जो है, मान लो एक नेटवर्क के अंदर हजारों पाइपलाइन हो जाती हैं, अब उसका डिजाइन करना इवन कंप्यूटर से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करके हम सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं, और उसमें एफिशिएंट सर्च एल्गोरिथम कौन सा होना चाहिए, ताकि जो नियर ऑप्टिमल डिजाइन नेटवर्क हम उसमें बता पाएं। So that was the very appreciated a lot by the researchers, and lot of people are using that algorithm how to search a optimal system for designing the water distribution network that we have done. so for the cities or like, For any network, for example, even the communication network also, because water distribution network is also a communication network. right, The telephone lines network is also a communication network, Mm. right? So Right. with the passage of time, with the passage more use and use of the network becomes saturated and saturated. Yeah, Because earlier it is unsaturated, then it is moving towards the saturated network. जैसे जैसे correct. नेटवर्क सैचुरेशन की तरफ जाता है, तो उसमें हाइड्रोलिक लॉसेज बढ़ते जाते हैं, लॉसेज बढ़ते जाएंगे, एंड चांसेस ऑफ फेलियर आल्सो थोड़े बढ़ते जाएंगे उसके अंदर। Right. तो उस नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम कैसे उसकी रिलायबिलिटी असेस करें। तो 3 टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। वन इज कनेक्टिविटी, कि जो सिग्नल है आपका एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाए। Hmm. अगर जैसे जैसे पाइपलाइन बढ़ेगी तो वो कनेक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन हाइड्रोलिक रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉसेज, जो सिग्नल का लॉसेज हैं वो कम होने लग जाए। आप कम्युनिकेशन नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि जो कॉल ड्रॉप होने लग जाएगी, या कोई लॉसेज ज़्यादा होने जाएगी, वो वॉइस जो डिस्टर्बेंस आने लग जाएगी। ऐसे ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर भी जो एनर्जी है, एनर्जी का लॉस बढ़ने लग जाएगा। और Right. जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा और जो पाथ बढ़ेगा, उसके अंदर Hmm. वाटर क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होने लग जाएगी, क्योंकि Correct. हमारा ऑब्जेक्टिव सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का है। तो Hmm. सेफ्टी क्वेश्चन हो जाती है, और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की क्वेश्चन हो जाती है। तो हमको एक कंप्रोमाइज लेना पड़ता है कि भी हमारी रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और क्योंकि जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो Hmm. कितनी कॉस्ट को बढ़ाएं, कितनी रिलायबिलिटी पे हम एक्सेप्ट करें, दैट इज व्हाट द मेन इश्यूज। Yes. So you often talk about efficient engineering as well. So can you shed a light on that as well? देखिए, इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग बेसिकली हाउ थ्रू द कॉमन सेंस आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, सिस्टमेटिक वे से कैसे देखते हैं, और आपकी एनालिटिकल पावर कैसे है। Right. बेसिकली मैं कई बार बोलता हूँ कि जो इंजीनियरिंग इज नथिंग बट हाउ बेस्ट यू कैन लुक इनटू द फ्यूचर। Right. कि कॉमन आदमी में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो अनसर्टेनिटीज हैं, उन अनसर्टेनिटीज को और रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट जो हम डिसीजन लेते हैं वो सक्सेस हो। आम आदमी लेगा तो हो सकता है कि 10 डिसीजंस में से 5 डिसीजंस फेल हो जाए, और इंजीनियर अगर 10 डिसीजंस में से लेगा तो उसका 1 या 2 डिसीजन ही फेल हो सकता है, या 0 डिसीजन फेल होगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे से अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हुए आप डिसीजन सजेस्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इन माय ओपिनियन द इंजीनियरिंग इज। That is correct. And so coming on to the closing notes as well, I want to know why it is critical, what is critical and why it is critical for next generation of engineers to understand the direction of this space. देखिए, जो आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये बोलूँगा कि भी क्रिटिकलिटी कई साइड में है। एक तो पहले ये है कि सहनशीलता हमारे अंदर कम होती जा रही है। जो पिछली जनरेशन्स में सहनशीलता ज़्यादा होती थी, शायद आने वाली जनरेशन में सहनशीलता कम होगी। दूसरे ये है कि भी हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव करने की सोचते हैं। ये शायद यंगर जनरेशन में और जेन ज़ी में थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसके लिए वो दे वांट टू डू एनीथिंग, मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बोथ दे आर रेडी टू डू। बट पुराने जमाने में शायद ऐसी चीज नहीं थी। Right. तो वो जो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस था वो एक स्लो पेस पे था, एंड पीपल वर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर डूइंग।
आज की डेट पे जो प्रोग्रेस, सो कॉल्ड प्रोग्रेस जो है या डेवलपमेंट जो है, वो वेरी फास्ट है, और अब की प्रोग्रेस जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जो आज आपकी जनरेशन में या जो बात करते हैं कि 20-25 साल के एज ग्रुप का जो है, वो 50 साल तक आते आते जो उन्होंने पढ़ा है वो सब चीजें चेंज होएगी, और जो समय के साथ साथ बदलेगा नहीं वो सरवाइव नहीं कर सकता। Correct. And so, for young civil engineers like us, the environmental and this aspect of engineering, how do you see the scope, and what is the lessons, and what should a person, what should a young civil engineer students like us to look at if we have to build a career in this? देखिए, हमको जो यंग जनरेशन को मैं एक तो चीज बोल रहा हूँ कि आपको जो देने में मजा है वो लेने में मजा नहीं है, ठीक है। तो अगर इस बात को हम ध्यान दें और जो जनरेशन ध्यान दे कि यू शुड फील एंजॉय इन गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, तो मेरा जो सुझाव है यंग जनरेशन को ये बोलूंगा कि वो नेचर के पास जाएं, नेचर एंजॉय करें, और फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंड सर्कल के साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प करने में आपको जो आनंद मिलेगा वो खाली अपने आप को एनरिच करने में नहीं मिलेगा। Correct, sir. Correct. And sir, thank you very much, sir, for joining in. And any other message you want to deliver? It's my pleasure to interact with you people, and my only wish is that we have to think of, हमको सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है, और हमको ये मानव जीवन जो है वो काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिला है। इस जीवन में हम कोई ना कोई ऐसा काम करके जाएँ जिससे हमको सैटिस्फैक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले, और हमारे जाने के बाद भी लोग ये कहें कि यस, ही वाज़ और शी वाज़ द पर्सन who did something for the society. Yes, that is great lessons, and thank you for sharing your incredible journey or insight. Thank you Thank you, very much. sir. Thank you very much. It's my pleasure to interact. हाँ.